what do you think about BGMI right now and compared to past and future, what do you think कहाँ पे जा सकता है BGMI? Is it possible to have BGMI as the next cricket of India? Of India, sure. I already feel that being BGMI itself puts a glass ceiling over there because it's Battlegrounds Mobile India. Yeah. Cricket is played everywhere in the world. अब एक IPL US में हुआ, उसके पहले वाला दुबई में हुआ. BGMI वहां जाके हमारे सर्वर्स भी नहीं चलेंगे आउटसाइड इंडिया. आई बिलीव इंडिया के बाद सर्वर्स भी एक्सेस कर सकते हैं. But अगर possible हो पाया global का साथ कुछ collab. But then it would be a different game. फिर BGMI would become the global game and people from PUBG Mobile would have to move to BGMI. तब जाके BGMI का global roadmap हो, then it makes sense. Where BGMI is replacing PUBG Mobile. जब तक PUBG Mobile और BGMI exist in parallel, BGMI will always be the India only ऐसा stepchild, while PUBG Mobile is the main game for everyone else in the world. जिनको slots मिलेंगे, invites मिलेगा, roadmap मिलेगी, e-sports का circuit होगा, सब कुछ होगा और BGMI से शायद हर साल एक टीम को शो मैच के लिए इन्वाइट करेंगे होपफुली. वो भी भीख मांग रहे 2 साल से और अभी तक 1-2 इवेंट हुए और एक इंटरनेशनल इवेंट यहाँ हुआ है जहाँ इंडिया कोरिया जो इन्विटेशन हुआ था. तो ऐसे इन्विटेशन और शो मैचेस ही होते रह जाएंगे. वी विल नेवर रियली बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल रोड मैप till that PUBG BGMI exists. And this is true only for India. It's not true for China. Yeah. They have different games. They have their own games and they get invites. I mean, even if they have their own game, it's not because their game is banned in their region. They have certain other reasons that they have their own game. Also, एक क्वेश्चन था मुझे सबसे पूछना था यहाँ पे. अगर इंडिया से मौका मिलेगा तो क्या तुम लोगों को लगता है प्लेयर जाएंगे बाहर खेलने के लिए दूसरी ऑप के लिए? And for all of y'all that are here, अगर like नहीं किया है, subscribe नहीं किया है, now is a great time. It's free. आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. I appreciate it. Thank you very much. मौका मिले, सोचो अगर कोई मिडिल ईस्ट की टीम से, कोरियन टीम से, कोई इंटरनेशनल टीम से इंडिया का कोई प्लेयर पिकअप हो जाए और मौका मिले तो I think they can go. There might be some restrictions. Sure. Could be. I mean, कभी ऐसा हुआ नहीं अभी तक, but that's what I think. No, but he's asking अगर कोई प्लेयर को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, you think जाएंगे? I mean, they should. What's he has an answer to that. That's what do you think? Dark चीज है ना स्पीरो भाई. डोंट यू थिंक कि कोई प्लेयर को अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि वो वर्ल्ड स्टेज पे खेल सकता है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे अगर वो खेला तो वापस वो अपने देश में आके अपना गेम नहीं खेल सकता. खेल सकता होगा. आई थिंक इट्स अ थिंग जो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि अभी तक किसी को हुआ नहीं है. You don't know. कोई मैंने पूछा कि क्या किसी प्लेयर ने अभी तक ट्राई करा है कि फॉर एग्जांपल ठीक है मुझे इंडिया में मैंने जितना खेलना था खेल लिया, अब मैं इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटीज देख के ट्राई करता हूँ, क्योंकि इंडिया में ना एज अ प्लेयर अगर मैं भी प्लेयर होता ना कि ठीक है मेरा स्किल सीलिंग मैं पहुंच चुका हूँ, अगर मुझे इससे भी आगे बढ़ना है तो क्या मुझे बाहर ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना चाहिए खेलने के लिए या नहीं? उस पर्सपेक्टिव में वी ऑलरेडी हैव ओवेस एंड उसकी लाइनअप जो बाहर खेल के आई. PUBG खेला उन्होंने जब BGMI मतलब नहीं था and वो बाहर गैलेक्सी रेसर वाले Galaxy Racers is the same team. MJ or Alton always was there in the team and they played PUBG Mobile and they managed to come back and played BGMI. But they had a lot of problems there. Like legal issues चल रहा था, उनकी salaries नहीं आई तो कौन उनको संभाल रहा है? There was no one there. That happened. Yeah, logisticals बहुत सारे. I mean, everyone thinks it's easy to operate outside India. मैंने स्ट्रीट पे बोला बहुत मुश्किल है, हलवा नहीं है कि कंपनी जाके कहीं और शुरू कर दो. That's not the easy part. But imagine if any of these players got an offer from any of the existing big offs. You think they would leave and go, or should they? I think they should. They should. Yeah. कि I also feel कि अगर ऐसा ऑफर 90% of the players को मिलेगा वो मना कर देंगे because they wouldn't want to leave उनका comfort zone. Only 10% of the players है जो बोलेंगे कि हाँ I want this opportunity, मैं जाके कहीं और I want to play better players जो मेरे से ज्यादा जानते हो और मुझे वो इंटरनेशनल स्टेज पे खेलना है. सब बोलेंगे इंटरनेशनल स्टेज पे खेलना है लेकिन इंडिया से बैठ. हाँ, बिकॉज उधर जाके ऑप्शन नहीं है कि बोलना कि हाँ भाई मेरे को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं करना. हम वहाँ वीकेंड पे चिल करके पार्टी करके. But if you want to be a professional esports player, you have to be a professional esports player. Thank you, but वो इंडिया में भी कर सकते हैं ना, वहाँ जाके करना क्या जरूरी है? I think what's happened with athletes is that they have become comfortable, they have become privileged. उनको लगता है कि ये तो मेरा हक है, अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया, इफ आई एम गेटिंग शॉर्टलिस्टेड कोई टॉप 16 टीम्स में या टॉप 20, 24 या 32 टीम्स में, मतलब आई हैव मेड इट. उनकी करियर का वो हाईलाइट होता है कि मैं अंडरडॉग लेवल से आके टियर 2 टियर 3 रैंक करके टियर 1 में नौकरी लग गई. उनके लिए से वही ना कि गवर्नमेंट में जॉब जब मिलते हैं ना भागे भागे घर पे आते हैं कि वहां मेरी नौकरी लग गई है, मुझे जॉब मिल गया, मैं लाइफ टाइम पेंशन हो जाएगा. उनके लिए वो होता है. दे डोंट लुक एट इट एज मुझे अभी मौका एंड अपॉर्चुनिटी मिले कि अब
तब मैं तोड़ूंगा. दिस इज नॉट गेटिंग इनटू अ टियर 1 ऑग. लोग जब बोलते हैं ना ओ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स में सोल में गॉडलैक में मेरा अचीवमेंट हो गया, दैट इज नॉट योर अचीवमेंट. योर अचीवमेंट इज अभी ये ऑग्स ने आपको मौका दिया, अब अचीव करके दिखाओ. अचीवमेंट उनकी वही हो जाता है कि मिल गया अपॉर्चुनिटी, सैलरी लॉक हो गई मेरी, अभी हर महीने मैं स्क्रीम करके खेल के सॉर्ट. It's the pass down of poor cultures. आई कैन अंडरस्टैंड जहाँ से वो आ रहे हैं, और मतलब उन्होंने भी बचपन में सपना, टीनेज में सपना देखा कि हम एक बड़ी ऑर्ग में जाएंगे, बट वहां वही पे ना, खेलेंगे. अगर वही उनका सपना वहां खत्म हो जाता है, या जहां ई स्पोर्ट्स हॉक्स की स्ट्रगल शुरू होती है, बिकॉज हमारा लाइनअप वहां शुरू होता है. एक टाइम प्लेयर्स आ गए तभी तो हमारी मेहनत शुरू होती है. हमारा बूट कैंप का खर्चा होता है, कुक का खर्चा होता है, उनके खाने पीने का, उनका ट्रैवल का, उनके लैंड का, डिवाइसेस का, स्ट्रीमिंग का, फिर उनके जर्सीज का, बाकी सब लॉजिस्टिक्स का. आर एक्सपेंसेस बिगिन द डे वी साइन देम. फिर स्पॉन्सर्स बैठ के ढूंढो, सब करो जस्ट ताकि होपफुली वो जीते. अगर उनका सपना वहां पूरा हो गया कि हमें मौका मिला, ऑक्स के तो लग गया बॉस, खत्म. लाइक तो शुरुआत ही गलत हो रही है हमारी. किसी का ये भी सपना होता है मुझे ऑफिशियल जीतना है. हाँ. अब जिस दिन ऑफिशियल जीत जाता सपना पूरा, क्या करता हूँ, केस क्लोज, दोबारा नहीं जीतना. बस वो दोबारा जीत के क्या करेंगे. क्योंकि सपना हो गया, हाँ. सैलरी बढ़ गई. नहीं अभी ऑफिशियल जीत गए, अभी कोई 2-3 लाख 4 लाख सैलरी दे देगा, 100 मिल गया टॉप तक. बहुत जब तक ऑक्स बंद हो जाएंगे कोई सैलरी नहीं दे पाएगा, फिर रीसेट हो जाएगा, फिर उनको 50,000 1 लाख की सैलरी पे बेस्ट प्लेयर्स को आना पड़ेगा, और जो उनके नीचे प्लेयर्स है 10-20 हजार में उनको गुजारा करना पड़ेगा. Setting an example, Firu bhai, अभी एक बार we dropped our team, उसके बाद literally the word on the street out there is everyone's gone into panic mode, everyone's gone into caution mode, everyone's become scared now. मैं तो बोलता हूँ 100 लोग और आए, 100 और ऑक्स शुरू करे, करोड़ों और जलाए, और 5 साल बाद सेम सिचुएशन में होंगे.